Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Dear student, Assalamu alaikum. This is Dr. Rana Farat Mahmood, and this is our last lecture about X-ray diffraction technique, Chem 5134. In this lecture, we are going to discuss the remaining part of the previous lecture that we have discussed in lecture 1.6. So here is another technique that is used as MR. Phases can also be inferred by using a process called molecular replacement, where a similar molecules already known phases are grafted onto the intensities of the molecule at hands, which are observationally determined. These phases can be obtained experimentally from a homologous method, or if the phases are known for the same molecule but in a different crystals, by simulating the molecules packing in the crystal and obtaining the theoretical phases. Here are the uses. There are useful They are useful, however, for ligand binding studies. It is also useful for such kind of molecules with small differences and relatively rigid structure. For example, derivatizing a small molecule. Direct method. The direct method, which estimate the initial phases and expanding phases using a triple relation, a ratio of reflections in which the intensity and the phase of one reflection can be explained by the two other two uh, as a triple relation. A number of initial phases are tested and selected by this method. Peterson methods. The Peterson method function gives a large value in a position which correspond to interatomic vectors. This method can be applied only when the crystal contain a heavy atoms or when a significant fraction of the structure is already known. Because of the development of the computers, the direct method is now the most useful technique for solving the phase problems. The reciprocal lattice. The data collected from the diffraction experiment is the reciprocal space representation of the crystal lattice. The reciprocal lattice is the basis upon which the geometry of X-ray and electron diffraction pattern is understood.
It represents the relationship between the real lattice and the diffraction pattern observed when we shine X-rays onto real lattice. It is also called Fourier space, that is the reciprocal lattice method, in which data collected from the diffraction experiment is the reciprocal space representation of the crystal lattice. This reciprocal lattice is the basis upon which geometry of the X-rays and electron diffraction pattern is understood. It also represents relationship between the real lattice and the diffraction pattern. It is observed that when we strike X-rays on the real lattice, it is only observed when we strike X-rays on the real lattice. This method is also called Fourier space. Here is the pictorial representation. This is known as reciprocal lattice. The structural model. The structure of an ideal crystal is uniquely determined by knowing the following parameters. These parameters are cell parameters, crystal system, space group, asymmetric unit contents, fractional coordinates, site occupancies, atomic displacement parameters. So, in determining the structure model is used, in which the structure of an ideal crystal is determined by the following known parameters, which are cell parameters, crystal system, space group, asymmetric unit contents. The asymmetric unit contents are following: fractional coordinates, site occupancies, and atomic displacement parameters. In determination of the structure from the angles and intensities of the scattered beam, a crystallographer can produce a three-dimensional picture of the density of the electrons within the crystal. From this electron density, the mean position of the atomic model in the crystal can be determined, as well as their chemical bonds, their disorder, and the other information, that is time average structure. So structure can be determined by using the angle and the intensities of the scattered beam of a three-dimensional picture of density of electron within the crystal. Structure refinement. The least square fitting of an is atomic model to the experimental diffraction data, in which R is known as experimental data or model. The smaller the value of the R, the better the arrangement.
If the value of the R is 0 to 10%, then this value is acceptable. X-ray data deposition. All single crystal X-ray diffraction data XYZ, atomic position, bond distances, bond angles, torsional angles, hydrogen bonding, crystalline packing, diffraction data files are deposited at the Cambridge Crystallographic Data Center (CSD). Powder diffraction data is deposited at the International Center for Diffraction Data (ICDD) as powder diffraction data files (PFD). क्या होती है? Crystallization is a natural or artificial process of formation of solid crystals. तो सॉलिड क्रिस्टल्स जो बन रहे होते हैं, चाहे वो नेचुरली बन रहे हैं या आर्टिफिशियली उनको बनाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे होते हैं। ये एक प्रेसिपिटेशन होती है फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में से किसी चीज़ का सॉलिड बन के अलग हो जाना, या किसी मेल्ट में से अलग हो जाना, या मोर रेयरली डिपॉजिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस, या गैस में से कोई सॉलिड चीज़ें क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग हो जाना, जो कि बहुत ही कम होता है। उस सारे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज आल्सो ए केमिकल सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। तो ये एक सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक कहलाती है। केमिकल यानी कि लिक्विड में से सॉलिड्स को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इन विच मास ट्रांसफर ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन टू ए प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन फेज अकर, जिसमें लिक्विड में से, लिक्विड सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट होता है वो एज ए सॉलिड जो है वो अलग फेज में आना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइन फेज में आना शुरू हो जाता है, प्योर फॉर्म में आ जाता है। लो न्यूक्लिएशन रेट अगर होगा एंड हाई ग्रोथ रेट होगा तो वो हम उससे क्या होगा कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। न्यूक्लिएशन क्या होती है उसको एंड पे बताया गया कि न्यूक्लिएशन इज द स्टेप where the solute molecule disperse in the solvent start to gather in a cluster, के वो स्टेप होता है कि जब सल्यूट के मालिक्यूल जो होते हैं वो सॉल्वेंट में डिस्पर्स होने के बाद अलग अलग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट स्टार्ट, यानी कि पहले वो सॉल्वेंट में डिस्पर्स हुए हुए थे, और जब वो स्टार्ट टू गैदर इन क्लस्टर्स होना शुरू हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिएशन कहते हैं। तो अगर न्यूक्लिएशन रेट क्या होगा? लो होगा एंड हाई ग्रोथ रेट होगा, तो फिर जो होगा वो क्लस्टर छोटे बनने की जो रफ्तार है वो कम है, लेकिन ज़्यादा क्लस्टर बन रहे हैं और एकदम से इकट्ठे होके आ रहे हैं तो वो बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इससे फिर हमारे पास क्रिस्टल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। हाई न्यूक्लिएशन अगर रेट होता है, यानी कि उनकी गैदरिंग जल्दी हो रही है, एटम्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, एंड लो ग्रोथ, उसके ऊपर जो लेयर्स बन रही हैं वो स्मॉल हैं, आहिस्ता आहिस्ता से बन रही हैं और कम रेट से बन रही हैं, गिव वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स और प्रेसिपिटेट्स, तो उससे स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं। डिपेंड्स ऑन कंडीशन, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, पीएच, प्रेशर, ईटीसी। और ये जो साइज का बड़ा होना या छोटा होना ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये उसके उन कंडीशंस पे डिपेंड करता है जो उस वक्त सॉल्वेंट को दी गई होती हैं जिसमें से सल्यूट ने अलग होना होता है। तो वो कंडीशन टेम्परेचर हो सकते हैं, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है कि कौन सा सॉल्वेंट है, किसी सॉल्वेंट में न्यूक्लिएशन फास्ट होगी, किसी सॉल्वेंट में न्यूक्लिएशन स्लो होगी। इसी तरह पीएच का इफेक्ट भी होता है, इसी तरह प्रेशर का इफेक्ट भी होता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनने हैं वो किस साइज़ के बनने हैं, स्मॉल बनने हैं या लार्ज बनने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, तो क्रिस्टलाइजेशन इज देयरफॉर एन एस्पेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये एक प्रेसिपिटेशन टाइप ही प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन,
obtained through a variation of solubility conditions of the solute in the solvent, जो कि solubility conditions को चेंज करते हुए हम कर रहे होते हैं किसी भी solute की जो solubility है वो किन conditions पे जो है वो ज़्यादा soluble है solvent में और किन conditions पे कम soluble है, किस जो है वो temperature पे उसकी solubility कम है, किस solvent में कम है, किस pH पे कम होगी, किस pressure पे होगी, तो ये सारी conditions को देख के solute जो होता है वो उसमें से separate किया जाता है from the solvent as compared to precipitation due to chemical reaction. तो प्रेसिपिटेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस में हो रही होती है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये सारी की सारी कंडीशन जो होती हैं उनको सेट करना पड़ता है ताकि एक अच्छी क्रिस्टलाइजेशन हो सके। न्यूक्लिएशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि न्यूक्लिएशन क्या होती है, इज द स्टेप वेयर सोल्यूट मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट स्टार्ट टू गैदर इन अ क्लस्टर। तो सॉल्वेंट में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के वो जब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो उस स्टेप को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। हम देखें तो स्लाइड नंबर 14 पे हमें बताया गया है कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है। तो प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड इन अ सॉल्यूशन। तो सॉलिड का सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इकट्ठे हो जाना और इनसाइड एन अदर सॉलिड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सॉलिड्स के अंदर में से भी सॉलिड्स जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं बाय द डिफ्यूजन इन अ सॉलिड। When the reaction occur in a liquid, the solid formed is called the precipitate. जब किसी भी रिएक्शन के दौरान लिक्विड में से सॉलिड जो है वो बनना शुरू हो जाता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट कह रहे होते हैं। When the reaction occur in a liquid, किसी लिक्विड के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें सॉलिड बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो उसका प्रेसिपिटेट कहलाता है। दो चीज़ों को मिलाते हैं हम, दो लिक्विड्स को अगर आपस में मिलाएं और उनके मिलाने से हमारे पास जब प्रोडक्ट आए तो वो सॉलिड फॉर्म में आए तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें हम चीज़ को पहले हल करते हैं जिसकी हमें क्रिस्टलाइजेशन करनी होती है और उसको हल करने के बाद ख़ास कंडीशन दी जाती हैं कि पहले उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है हल करने के लिए, फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के दौरान फिर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से एटम या मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल क्रिस्टलाइन स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं। जबकि प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद कोई नई चीज़ जो है वो बनने के बाद उसमें अलग होना शुरू हो जाती है। The liquid remained above the solid is in either case called supernate or supernatant। तो ये आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसमें सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में से फिर आप देख रहे हैं कि सस्पेंशन हो गई है और सस्पेंशन होने के बाद फिर उसमें से चीज़ें जो है वो नीचे बैठना शुरू हो रही हैं। तो वो जो चीज़ नीचे बैठ रही है ब्लू कलर में सॉलिड की फॉर्म में उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और उसके ऊपर जो लिक्विड होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम सुपरनेट या सुपरनेटेंट मान रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम अपने स्लाइड नंबर 15 पे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि स्टेप्स इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। The crystallization process consists of two major events, nucleation and crystal growth। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें दो मेन जो है वो उसके इवेंट्स होते हैं। एक उसमें न्यूक्लिएशन होता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस वक्त डिसॉल्व फॉर्म में हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा उसमें क्रिस्टल ग्रोथ है कि वो फिर इकट्ठे होकर जैसे यूनिट सेल एक दूसरे यूनिट सेल के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, 3 डायमेंशन में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो उसको हम फिर क्रिस्टल ग्रोथ कहना शुरू कर देते हैं। तो न्यूक्लिएशन an important stage of the precipitation process is that onset of nucleation। तो ये न्यूक्लिएशन जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस की। इसमें क्या होता है, आगाज होता है न्यूक्लिएशन का
के एटम्स आयन या मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू होंगे और यूनिट सेल बनाने लगेंगे। न्यूक्लिएशन इज द स्टेप वेयर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट स्टार्ट टुगेदर इन अ क्लस्टर। तो वो प्रोसेस या वो स्टेप जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट में मौजूद होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, वो उस सॉल्वेंट में से अलग होके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं क्लस्टर की फॉर्म में ऑन द नैनोमीटर स्केल, elevating solute concentration in a small region that becomes stable under the current operating condition। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे जिसमें कुछ कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। वो कंडीशन टेम्परेचर है और सुपर सैचुरेशन है। The creation of the hypothetical solid particle include the formation of an interface। तो किसी भी hypothetical solid particles की creation के लिए formation of interface का होना ज़रूरी होता है, which requires some energy based on the relative surface energy of the solid and the solution। और ये जो इंटरफेस का बनना है ये डिपेंड करता है रिलेटिव सर्विस एनर्जी ऑफ सॉलिड एंड सॉल्यूशन कि उनकी आपस के अंदर क्या एनर्जी है सॉलिड की और सॉल्यूशंस की, और सॉलिड के पार्टिकल्स की आपस में क्या एनर्जी है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। द एनर्जी इफ द एनर्जी इज नॉट अवेलेबल then no suitable nucleation surface is available, super saturation occur। अगर ये एनर्जी मौजूद नहीं होगी तो कोई सूटेबल न्यूक्लिएशन सरफेस जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर सुपर सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगी कि सल्यूट जो होंगे वो और भी ज़्यादा उसमें हल होना शुरू हो जाते हैं। अगली हमारी स्लाइड नंबर 16 है जिसमें क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में बताया गया है। तो क्रिस्टल ग्रोथ इज द सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियाई दैट सक्सीड इन अचीविंग ए क्रिटिकल क्लस्टर साइज। तो वही जो पहले एक यूनिट सेल बनता है फिर वो यूनिट सेल आपस में जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जुड़ते एक ख़ास जो है वो किस्म का क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं, एक ख़ास साइज़ का क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ का नाम दे रहे होते हैं। न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ कंटिन्यू टू अकर साइमल्टेनियसली। तो न्यूक्लिएशन स्टार्ट होने के साथ साथ फिर नए यूनिट सेल भी बनते जाते हैं और वो यूनिट सेल आपस में जुड़ते भी जाते हैं। तो इसी ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं फिर साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं अनटिल द सुपर सैचुरेशन एग्जिस्ट। जब तक सॉल्वेंट के अंदर सुपर सैचुरेशन होगी यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद होगी तब तक ये न्यूक्लिएशन और ग्रोथ जो होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। सुपर सैचुरेशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हेंस the rate of nucleation and growth is driven by the existing supersaturation in solution। तो सुपर सैचुरेशन का होना क्रिस्टलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और रेट ऑफ न्यूक्लिएशन और ग्रोथ जो है वो ड्रिवन बाय द एग्जिस्टिंग सुपर सैचुरेशन इन द सॉल्यूशन। तो ये जो रेट होता है न्यूक्लिएशन का, कितनी जल्दी न्यूक्लिएशन होनी है या ग्रोथ कितनी जल्दी होनी है, ये इसी सुपर सैचुरेशन पे ही डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टलाइजेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टलाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला टेम्परेचर का रोल है, रोल ऑफ टेम्परेचर एंड सैचुरेशन। हाउएवर when the clusters are not stable, अगर क्लस्टर स्टेबल नहीं होता, they can re-dissolve, तो वो दोबारा से हल हो सकते हैं उसी सॉल्वेंट के अंदर। Therefore, the cluster need to reach a critical size in order to become stable nuclei। तो एक स्टेबल न्यूक्लियाई होने के लिए क्लस्टर का एक क्रिटिकल साइज को अटेन करना ज़रूरी होता है। Such critical size is dictated by operating condition, और ये जो क्रिटिकल साइज होता है ये इन्हीं ऑपरेटिंग कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि टेम्परेचर कितना है और सुपर सैचुरेशन जो है वो कितनी है। स्लाइड नंबर 17 पे तो इसमें हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल मेथड्स से कैसे जो है वो क्रिस्टलाइजेशन होती है और नेचुरल
कुछ वो प्रोसेस होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर क्रिस्टलाइजेशन टू अकर फ्रॉम ए सोल्यूशन इट मस्ट बी सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशंस में से क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। This means that the solution has to contain more solute entities, molecules or ions than it would contain under equilibrium saturated solution. तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है उस वक्त उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम होता है सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स और आयंस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में, कि वहाँ पे सोल्यूट जो होते हैं वो सेपरेट भी हो रहे होते हैं और डिजोल्व भी हो रहे होते हैं एट द सेम रेट। लेकिन सुपर सैचुरेशन में क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू solubility of the solute in that solvent at particular temperature, so this can be achieved by various methods। और ये हम सुपर सैचुरेशन किस तरह से कर सकते हैं, इनके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है कि सोल्यूशन को कूलिंग कर दी जाए। तो सोल्यूशन अगर कूल कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, तो उससे solubility कम हो जाएगी। solubility कम होगी तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएंगे। सल्यूट जब नीचे बैठने लगेगा तो वो एक क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी सॉल्युबिलिटी के कम होने से। एडिशन ऑफ द सेकंड सॉल्वेंट टू रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्यूट, या फिर हम कोई और सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दें जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाए सल्यूट की। तो इस टेक्निक को एंटी सॉल्वेंट आर ड्राउन आउट कहा जाता है। इसी तरह फिर केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन करके भी हम उस जो सल्यूट है उसकी, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट होता है, उसमें से हम किसी आयन को अलग नीचे बिठाना चाह रहे होते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं या उसकी जो solubility है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। फिर इसी तरह चेंज इन पीएच इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं या प्रोसेस होते हैं जिसमें अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज कर दिया जाए तो उससे भी सॉल्युबिलिटी के अंदर डिक्रीज आता है। और इंडस्ट्रियल, ये एक कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्री में ये वाला मेथड जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अदर मेथड्स सच एज सॉल्वेंट एवेपोरेशन कैन आल्सो बी यूज्ड। तो सॉल्वेंट को एवेपोरेट करते हुए भी हम सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो फिर सल्यूट के मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सल्यूट जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट होना या क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ सॉल्वेंट ऑफ एवेपोरेशन। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं कि सिंगल सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। तो सिंगल सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन इज typically the mixture of compound A and impurity B are dissolved in small amount of hot solvent to fully dissolve the mixture, thus making saturated solution। तो हम एक चीज़ को प्योर फॉर्म में लेके आना चाह रहे होते हैं, जैसा कि कंपाउंड ए है और उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ है, तो उसको भी हमने क्या करना होता है, हमने ऐसा करना होता है कि इन दोनों को हम किसी हार्ड हार्ड सॉल्वेंट के अंदर फुली डिसॉल्व करना होता है। डिसॉल्व इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो बहुत ही कम अमाउंट इनकी लेके हॉट सॉल्वेंट में इनको हमने फुली डिसॉल्व करना है, thus making the saturated solution। द सोल्यूशन इज देन अलाउड टू कूल। तो जब हम उसको हल कर लेते हैं तो उसके बाद सोल्यूशंस को ठंडा किया जाता है ताकि सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज किया जा सके। एज द सोल्यूशन कूल्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन द सोल्यूशन ड्रॉप्स। तो सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। दिस रिजल्ट इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम सोल्यूशन। तो इस तरह से सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। द स्लोअर द रेट ऑफ कूलिंग, अगर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करेंगे, द बिगर द क्रिस्टल फाउंड, तो क्रिस्टल उतने ही बड़े बनते हैं। और अगर ज़्यादा बड़े क्रिस्टल बन जाए तो उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रिस्टल जो होता है वो फ़ायदेमंद नहीं होता स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं आ सकता। सॉल्वेंट एडेड टू द कंपाउंड्स,
तो नीचे इस फिगर्स 1, 2, 3 को एक्सप्लेन किया गया है कि पहले वाले में हमने सॉल्वेंट ऐड किया है कंपाउंड के अंदर, उसको मिक्स किया है और वो ऑरेंज फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद हम सॉल्वेंट को हीट करते हैं, हीटेड टू द गिव सैचुरेटेड कंपाउंड, और उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ ले आते हैं, उसका कलर भी ऑरेंज है। फिर सैचुरेटेड कंपाउंड सोल्यूशन ऑरेंज जो कलर में है, हीट करने के बाद अलाउड टू कूल, उसको ठंडा किया जाता है ओवर अ टाइम टू गिव द क्रिस्टल। तो फिर जब ठंडा करेंगे तो सॉलिबिलिटी क्योंकि डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने से वो एटम्स या मालिक्यूल्स या आयन जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, जो कि लास्ट फिगर नंबर 4 में हमें दिखाया है कि वो उसमें से अलग हो रहे हैं। और कलर ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो गेट फेड, तो वहां से ऑरेंज के बाद उसका कलर पेल ऑरेंज होना शुरू हो जाता है क्योंकि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जिन एटम आयन या मालिक्यूल की वजह से वो कलर आ रहा होता है तो वो क्योंकि सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं तो वो कलर भी थोड़ा बहुत फेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड नंबर 20 पर। तो ये क्या है? इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। इन एन आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द इम्प्योरिटी B is not exceed at any temperature। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर जो कंपाउंड हम हल करना चाहते हैं वो तो हल हो जाए, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं बी है वो उसमें हल नहीं होता, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है। In that case, the solid crystal will consist of pure A and all the impurity will remain in solution। तो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो उस केस में जब इम्प्योरिटी हल नहीं हुई, तो जब क्रिस्टल बनेंगे तो सिर्फ हमारे पास ए के ही क्रिस्टल बनेंगे, बी जो है वो हम उसको पहले ही सेपरेट कर लेते हैं बाय द फिल्ट्रेशन। जब हॉट सोल्यूशन होता है तो उसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट करेंगे तो बी क्योंकि हल नहीं होता तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और ए डिजोल्व फॉर्म में नीचे आ जाता है। फिर जब ए डिजोल्व फॉर्म में नीचे आएगा तो उसको हम ठंडा करेंगे तो उसमें से क्रिस्टल सिर्फ ए के ही बनेंगे। The solid crystals are collected by filtration and filtrate is discard। तो ऊपर जो फिल्ट्रेट रह जाता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, जिसमें impurities होती हैं, बी होता है फिल्टर पेपर के ऊपर। If the solubility product of impurity exceed, some of the impurities can co-precipitate। अगर बी उसमें हल हो जाए तो कुछ जो impurities हैं वो भी co-precipitate उसके साथ हो सकती हैं, क्रिस्टल के साथ जुड़ सकती हैं, उसका हिस्सा बन सकती हैं। However, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव लो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, इट कंसंट्रेशन इन द प्रेसिपिटेटेड क्रिस्टल विल बी लेस देन इट्स कंसंट्रेशन इन द ओरिजिनल सॉलिड। तो क्योंकि सारे के सारी जो इम्प्योरिटी हल होती है वो सारी की सारी तो क्रिस्टलाइज आउट नहीं होती, तो उसमें से बहुत ही ऑलरेडी उसकी अमाउंट कम होती है बी की, तो जब वो फिर री उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है ए के साथ साथ तो उसमें भी उसकी कंसंट्रेशन मज़ीद कम हो जाती है। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को रिपीट करते हैं, यानी कि उस क्रिस्टल्स को लेके फिर दोबारा से हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और डिज़ोल्व करने के बाद फिर उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो उस तरह से हम इसको प्योर कर सकते हैं, ए को और बी को उसमें से कम कर सकते हैं। Repeated recrystallization will result in a pure crystalline precipitate। The purity is checked after each crystallization by measuring the melting point। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम क्रिस्टल बना रहे हैं उसका जो वो प्योर है या उसमें कोई इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, तो वो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट को चेक करते हुए बता सकते हैं। सेंस इम्प्योरिटीज लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, अगर इम्प्योरिटीज मौजूद होगी तो असल जो हमारे पास सैंपल है जिसको हमने क्रिस्टलाइज आउट किया है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा जो उसके ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट है उससे। और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट सही होता है जितना होना चाहिए तो इसका मतलब है कि फिर वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्योरिटीज़ जो होती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होते, और अगर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज हो जाता है। NMR spectroscopy can also be used to check the level of impurity। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम किसी भी सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज का लेवल चेक कर सकते हैं। सॉरी। रिपीटेड
Recrystallization result in some loss of material because of non-zero solubility compound A. तो रिपीटेड अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो उसमें से हम कुछ क्रिस्टल जो होते हैं, कुछ मटेरियल अपना जो है वो लॉस कर देते हैं, क्योंकि ए जो है वो भी हल होता है, हल होने के बाद सारे का सारा क्रिस्टलाइज आउट नहीं होता. The crystallization process require an initiation step such as the addition of a seed crystal. तो शुरू में जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो उसके लिए इनिशिएशन स्टेप होता है, और उस स्टेप को हम कहते हैं कि सीड फॉर्मेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ए सीड. तो वो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हमारे पास न्यूक्लिएशन होती है, उसी को हम सीड क्रिस्टल्स भी बोल रहे होते हैं. इन द लेबोरेटरी ए minuscule fragment of a glass produced by scratching the side of the glass recrystallization vessel may provide the nucleus on which crystal may grow. तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा ग्लास का एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं जो कि स्क्रैचिंग ऑफ साइड ऑफ द ग्लास क्रिस्टलाइजेशन वेसल से लिया जाता है, और उससे मे प्रोवाइड द न्यूक्लियस ऑन विच क्रिस्टल में ग्रो. तो वो एक न्यूक्लियस के तौर पे काम करता है जिसके ऊपर क्रिस्टल ने ग्रो होना होता है. सक्सेसफुल रिक्रिस्टलाइजेशन डिपेंड ऑन फाइंडिंग द राइट सॉल्वेंट. सक्सेसफुल रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि जो सॉल्वेंट है वो हम सही से चूज़ करें, क्योंकि हर सॉल्वेंट के अंदर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, चाहे उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व भी हो जाए. This is usually a combination or prediction experience and trial error. तो ये एक हमारे पास जो होता है, जैसे हम कहते हैं तीर या तुक्का वाली बात होती है कि डिफरेंट जो है वो सॉल्वेंट ट्राई किए जाते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट को ट्राई किया जाता है, और फिर एक्सपीरियंस या प्रिडिक्शन पे भी बेस करता है कि कौन कितना जो है वो एक्सपीरियंस है क्रिस्टलाइजेशन में, तो उसको नो हाउ होती है कि किस तरह से हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं. तो ये एक एक्सपीरियंस वाला काम होता है जिसमें ट्रायल एंड ट्रायल होते हैं और एरर भी आ रहे होते हैं. उन सारी चीज़ों से वो साइंटिस्ट या जो पर्सन है जो लेबॉर्ट्री में काम कर रहा है वो उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है. तो इस तरह जितना भी कोई अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो उस तरह से वो डिफरेंट सॉल्वेंट को कंबाइन करते हुए भी क्रिस्टलाइजेशन कर सकता है. The compound must be more soluble at higher temperature than at lower temperature. क्रिस्टलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो सल्यूट हम ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे उतना हल ना हो उस सॉल्वेंट में, जितना कि उसको हायर टेम्परेचर पे वो हल होता है. यानी कि सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए एट हायर टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो सॉल्युबिलिटी कम होने से ही क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होती है. Any insoluble impurity is removed by the technique of hot filtration. तो अगर कोई solubility जब हम किसी कंपाउंड को क्रिस्टलाइज आउट करना चाहते हैं और उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसे सॉल्वेंट लें जिसमें वो इम्प्योरिटीज़ हल ना हो. जब वो उसमें हल नहीं होगी तो फिर उस हॉट सॉल्वेंट को जब हम फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन के थ्रू वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं फिल्टर पेपर पे रह जाती हैं, और इस तरह से हम उसको रिमूव कर लेते हैं. मल्टी सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन भी होती है, जैसे हमने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉल्वेंट के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाए. तो इसके लिए हमें जो है वो दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट को भी आपस में मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को करना होता है. दिस मेथड इज़ द सेम एज द अबव, बट वेयर टू आर मोर सॉल्वेंट आर यूज्ड. तो ये सॉल्वेंट जो है, ये जो प्रोसेस है, ये भी वो वैसे ही है कि हमने क्या करना है, पहले तो सॉल्वेंट लेना है, उसमें उसको हल करना है हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा हल होना चाहिए.
तो इसमें बस ये होता है कि हम एक की बजाय एक से ज़्यादा 2 या 3 सॉल्वेंट का मिक्सचर ले लेते हैं, तब उसके अंदर फिर हम सोल्यूट को हल करते हैं। This relies on both compound A and impurity B being soluble in the first solvent. तो ये देखा जाता है कि जो दोनों चीज़ें अगर एक में हल हो रही हैं, पहले ए और बी दोनों ही पहले सॉल्वेंट में हल हो जाती हैं, तो फिर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसकी वजह से एक की सॉलिबिलिटी उसमें डिक्रीज हो जाए, खासतौर पर बी की सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ए सेकेंड सॉल्वेंट इज स्लोली एडेड, तो सेकेंड सॉल्वेंट को आहिस्ता आहिस्ता ऐड किया जाता है। Either compound A or impurity B will be insoluble in the solvent and precipitate। तो इसमें से ऐसा होगा कि हम उस सॉल्वेंट के डालने से या तो A इनडिजोल्व फॉर्म में आ जाएगा या B अनडिजोल्व फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से एक चीज़ जो है वो उस से सेपरेट हो सकती है फिल्ट्रेशन के थ्रू। जब जो चीज़ हल नहीं होगी सॉल्वेंट में या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में, तो हम उसको फिल्टर करेंगे तो वो हम उस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। whilst the other compound A impurity B will remain in solution। तो जो सोल्यूशन में रहेगी वो फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगी, डिजॉल्व फॉर्म में होगी, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। और अगर A जो है वो इनसॉल्युबल हो गया है तो उसको फिल्टर पेपर से लेकर हम दोबारा से किसी और सॉल्वेंट में हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ए को बी से सेपरेट कर सकते हैं। या बी अगर इम्प्योरिटी है और वो ऊपर रह गई है, ए सॉल्युबल फॉर्म में नीचे आ गया है, तो फिर उसी ए को हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए रख देते हैं ताकि वो कूल होता जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से सॉल्वेंट सल्यूट के मालिक्यूल जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। Thus the proportion of first and second solvent is critical। और ये भी है कि कितना हमने पहला सॉल्वेंट लिया है और दूसरा सॉल्वेंट किस मिकदार में लेना है, ये सब चीज़ डिपेंड करती है उसके एक्सपीरियंस पे। तो कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और उसके बाद जाके हमें सही जो रेशियो है सॉल्वेंट की वो हमें दस्तयाब होती है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। Typically, the second solvent is added slowly until one of the compound begin to crystallize from solution and then the solution is cooled। तो हम दूसरे solution को आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे होते हैं और जब हमें लगता है कि इसमें से एक चीज़ जो है वो बैठने शुरू हो गई है नीचे, तो फिर हम उस solution को ठंडा कर लेते हैं और उससे फिर हम उनको impurities को separate कर लेते हैं। Heating is not required for this technique but can be used। वैसे इस टेक्निक में हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चीज़ें जो वो जो सॉल्वेंट हमने पहले लिया था उसमें एक चीज़ हल हो चुकी होती है, तो फर्दर हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो यूज़ की जा सकती है। So this was all about our first chapter, X-ray diffraction technique, and wish you best of luck for your upcoming exams after Eid। I hope you will do very well and best of luck। So see you in the next semester. Till then, Allah Hafiz.